theme of our worship this morning is the messengers of God are often unheeded. Let us pray. Father Almighty, I bring this your church, myself and my flock unto thy care. Lord God Almighty, you have been with us, you have protected us, you have taken care of us, you have brought us thus far. Jesus, we pray thee, let your Holy Spirit guide us, that we may worship thee in spirit and in truth. Lord, our loving Heavenly Father, we pray for those who have passed away. We specifically pray for Mr. Manuel Joseph, who has been with you now. Jesus, give peace to the bereaved family, and may his soul rest in peace. We also pray, O Lord, for all the people throughout the world, that we be protected from this coronavirus. And Jesus, you help humankind to make action so that this disease passes away, and that, Lord, we all are safe. Lord, we also pray for those who are suffering in our church. Touch them with your healing hand and restore them to health and strength. For we ask it all in the name of your Son, our Savior, Jesus Christ. Amen. We will all rise up and sing our first hymn. ज्योति से यीशु की दूर अंधियारी, फूल उठी मन में प्रेम की बुलवारी। ज्योति से यीशु की तू सबदान तू मालिक तू जीवन है तू। तन्मान तू सबदान तू मालिक तू जीवन है तू। जल थल में बादल में शक्ति तेरी गर्जन है तू। कण कण में देख पारी छवि तेरी प्यारी। फूल उठी मन में प्रेम की बुलवारी। ज्योति से यीशु की शब्द तेरा गूंज उठा, जाग उठी मेरी लगन। शब्द तेरा गूंज उठा, जाग उठी मेरी लगन। सप्त स्वरन प्यार की धुन झूम उठा सारा गगन। प्रेम में डूब गई ये दुनिया सारी। फूल उठी मन में प्रेम की बुलवारी। ज्योति से यीशु की दूर अंधियारी। फूल उठी मन में प्रेम की
जाएगी एक्सोडस की पुस्तक, उसका 32वां अध्याय और उसकी 1 से 10 आयत। Exodus chapter 32, verse 1 to 10. When the people saw that Moses had not come down from the mountain, but was staying there a long time, they gathered round Aaron and said to him, do not know what has happened to this man Moses, who led us out of Egypt. So make us a god to lead us. Aaron said to them, take off the gold earrings which your wives, your sons, and your daughters are wearing, and bring them to me. So all the people took off their gold earrings and brought them to Aaron. He took the earrings, melted them, poured the gold into a mold, and made a gold bull calf. The people said, Israel, this is our God, who led us out of Egypt. Then Aaron built an altar in front of the gold bull and announced, tomorrow there will be a festival to honor the Lord. Early the next morning they brought some animals to burn as sacrifices and others to eat as fellowship offerings. The people sat down into a feast which turned into an orgy of drinking and sex. The Lord said to Moses, go back down at once, because your people whom you led out of Egypt have sinned and rejected me. They have already left the way that I commanded them to follow. They have made a bull calf out of melted gold and have worshipped it and offered sacrifices to it. They are saying that this is their God who led them out of Egypt. I know how stubborn these people are. Now don't try to stop me. I am angry with them and I am going to destroy them. Then I will make you and your descendants into a great nation. This is the word of God. इस समय हमारे सामने पढ़ी जाएगी Psalm 106 verse 7 to 18। पुराने नियम का पाठ भजन संहिता उसके अध्याय 106 उसका 7 से 18 पद तक। भजन संहिता अध्याय 106 उसके 7 से 18 पद तक। मिस्र में हमारे पुरखाओं ने तेरे आश्चर्य कर्मों पर मन नहीं लगाया, न तेरी अपार करुणा को स्मरण रखा। उन्होंने समुद्र के किनारे अर्थात लाल समुद्र के किनारे बलवा किया, तो भी उसने अपने नाम के निमित्त उनका उद्धार किया, जिससे वह अपने पराक्रम को प्रकट करे। तब उसने लाल समुद्र को घुड़का और वह सूख गया, और वह उन्हें गहरे जल के बीच से मानो जंगल में से निकाल ले आया। उसने उन्हें बैरी के हाथ से उबारा और शत्रु के हाथ से छुड़ा लिया, और उनके शत्रु जंगल में डूब गए, उनमें से एक भी न बचा। तब उन्होंने उसके वचनों का विश्वास किया और उसकी स्तुति गाने लगे, परंतु वे झट उसके कामों को भूल गए और उसकी युक्ति के लिए न ठहरे। उन्होंने जंगल में अति लालसा की और निर्जल स्थान में परमेश्वर की परीक्षा की। जब उसने उन्हें मुंह मांगा वर तो दिया, परंतु उनके प्राण को सुखा दिया। उन्होंने छावनी में मूसा के और यहोवा के पवित्र जन हारून के विषय में डाह की। भूमि फटकर दातान को निगल गई और अबीराम के झुंड को ग्रस लिया, और उनके झुंड में आग भड़क उठी और दुष्ट लोग लौ से भस्म हो गए। ये परमेश्वर का वचन है। परमेश्वर का धन्यवाद हो। इस समय हमारे सामने पढ़ी जाएगी रोमन्स चैप्टर 10 verse 13 to 21। Reading has been taken from Romans chapter 10 verse 13 to 21. Romans chapter 10 verse 13 to 21. For whomsoever shall call upon the name of the Lord shall be saved. How then shall they call on him in whom they have not believed? And how shall they believe in him
of whom they have not heard? And how shall they hear without a preacher? And how shall they preach except they be sent? As it is written, how beautiful are the feet of them that preach the gospel of peace and bring glad tidings of good things. But they have not all obeyed the gospel. For Esaias said, Lord, who hath believed our report? So then faith cometh by hearing, and hearing by the word of God. But I say, have they not heard? Yes, verily their sound went into all the earth, and their words unto the ends of the world. But I say, did not Israel know? First Moses said, I will provoke you to jealousy by them that are no people, and by a foolish nation I will anger you. But Esaias is very bold, and said, I was found of them that sought me not. I was made manifest unto them that asked not after me. But to Israel he said, all day long I have stretched forth my hands unto a disobedient and gainsaying people. Here ends the reading. The Holy Gospel is found written in the Gospel according to St. Matthew, chapter 11, verses 16 to 24. इंजील मुक़द्दस मत्ती की इंजील उसका 11वां बाब उसकी 16 से 24वीं आयत तक यूँ शुरू होती है। मैं इस समय के लोगों की उपमा किससे दूँ? वे उन बालकों के समान हैं जो बाजारों में बैठे हुए एक दूसरे से पुकार कर कहते हैं, हमने तुम्हारे लिए बांसुरी बजाई और तुम न नाचे, हमने विलाप किया और तुमने छाती नहीं पीटी। क्योंकि यूहन्ना न खाता आया और न पीता, और वे कहते हैं उसमें दुष्टात्मा है। मनुष्य का पुत्र खाता पीता आया, और वे कहते हैं देखो पेटू और पियक्कड़, मनुष्य महसूल लेने वालों और पापियों का मित्र। पर ज्ञान अपने कामों से सच्चा ठहराया गया है। तब वो नगरों को उलाहना देने लगा जिनमें उसने बहुत से सामर्थ्य के काम किए थे, क्योंकि उन्होंने अपना मन नहीं फिराया था। हाय खुराजीन, हाय बैतसैदा, जो सामर्थ्य के काम तुम में किए गए, यदि वे सूर और सैदा में किए जाते तो टाट ओढ़कर और राख में बैठकर वे कब के मन फिरा लेते। परंतु मैं तुमसे कहता हूँ कि न्याय के दिन तुम्हारी दशा से सूर और सैदा की दशा अधिक सहने योग्य होगी। हे कफरनहूम, क्या तू स्वर्ग तक ऊंचा किया जाएगा? तू तो अधोलोक तक नीचे किया जाएगा। जो सामर्थ्य के काम तुझ में किए गए हैं, यदि सदोम में किए जाते तो वो आज तक बना रहता। पर मैं तुमसे कहता हूँ कि न्याय के दिन तेरी दशा से सदोम की दशा अधिक सहने योग्य होगी। ये मसीह की इंजील है। आइए हम अपने स्वरों को खुदा के हज़ूर झुकाएं। May the words of my mouth and the meditations of all our hearts be acceptable in thy sight, O Lord, our strength and our Redeemer. Amen. अभी हमारे सामने जो रीडिंग पढ़ी गई, एक्सोडस 32, निर्गमन की पुस्तक उसका 32वां अध्याय, उसकी 1 से 10 आयत। तो वहाँ हम क्या देखते हैं कि एरन जो था, जो कि अपने लोगों के साथ था, और मूसा जिसे खुदा ने माउंट के ऊपर बुलाया था, माउंट ज़ायन के ऊपर, ताकि वो उसको 10 कमांडमेंट्स दे, वो ऊपर चला गया मूसा, और जो लोग थे वो यहाँ वेट कर रहे थे, और 40 दिन बीत गए। 40 दिन is a very long time. 40 days passed away, and they people were without Moses, or they were without shepherd. तभी तो परमेश्वर कहता है, My sheep should not be without a shepherd. मेरी जो भेड़ें हैं वो बगैर चरवाहे के नहीं होनी चाहिए, क्योंकि चरवाहे की जरूरत बहुत ज्यादा है। और यहाँ मोसेस द चरवाहा, जो शेपर्ड था, वो पहाड़ पर गया हुआ था, और जो कलीसिया थी वो नीचे वेट कर रही थी, and they could not
रिमेन साइलेंट। और वो एरन के पास आए कि एरन हमारे को तो उस खुदा के पास लिए चल जो कि हमें लीड कर रहा है। हमें नहीं पता कि ये मूसा जो कि हमें लीड करके यहाँ तक लेके आया है, जो कि हमें लाल समुद्र में से निकाल के लाया है, जो कि आज तक हमें बचाता आया है, विल्डरनेस में हमें लीड करता आया है, और अब जब हम वो पहाड़ पर गया है तो वो वापस नहीं लौटा है। हमें नहीं पता कि उसका क्या हुआ। So you bring us to God or bring God to us. And they started forcing Aaron. Moses was a strong character and Aaron was a very weak person. तो हारून जो था वो घबरा गया। कई बार ऐसा होता है, लोग पास्टर्स को आगे गाइड करने लगते हैं, पादरी साहब ऐसा करना चाहिए, वैसा करना चाहिए, और कई बार पादरी लोग उनकी बातों में भी आ जाते हैं, क्योंकि वो उनको किससे गाइडेंस मांगनी है पादरी को? खुदावन से। खुदा तू क्या चाहता है कि मैं क्या करूं? मगर हारून ने उन्हीं से जब डिस्कस किया कि हमारे लिए खुदा बना, तो उसने कहा जाओ अपनी सोने की बालियां ले आओ, अपनी सोने की चीजें ले आओ, कड़े और जो भी है तुम्हारे पास सोने के ऑर्नामेंट्स जो तुम वहां से इजिप्ट से लेके आए हो, और मैं तुम्हारे लिए ढाल कर एक मूर्ति बना दूंगा और वो तुम्हारे लिए गॉड होगी। और तब उसने एक बुल की मूर्ति बना दी, और हम देखते हैं कि वो लोग उस बुल की मूर्ति को पूजने लगे, और ये चीज खुदा को पसंद नहीं आई, क्योंकि खुदावन जो था वो उन्हें लेके आ रहा था, और मूसा के पास खुदावन का वचन पहुंचा। खुदावन वहां मूसा से बात कर रहा था, उसने कहा जा वापस लौट इन 10 कमांडमेंट्स के साथ, और जा देख तेरे लोग जो हैं वो दे आर विदाउट अ शेपर्ड। हम देखते हैं कि जब मूसा वापस लौटा तो बहुत ही ज्यादा गुस्से में आ गया, जब उसने उनको उस बुल के सामने, उस बैल के सामने जब वो नाचने और गाने लगे और वर्शिप करने लगे, तो वो बहुत ही ज्यादा गुस्सा मूसा को आया, और उसने उन सब के बीच में उनको गुस्सा किया। खुदावन मुझे और आपको शीप विदाउट अ शेपर्ड नहीं चाहता। शेपर्ड की ड्यूटी है कि वो अपनी भेड़ों की अगुवाई करे, उनको लिए चले। हम देखते हैं कि शेपर्ड को परमेश्वर की अगुवाई में चलना है। लोग आके ये कहेंगे ये कर लो पादरी साहब, वो कर लो पादरी साहब, मगर परमेश्वर को के लोगों को ये देखना है कि प्रभु क्या चाह रहा है। किसी गाइडेंस को नहीं मान लेना जब तक परमेश्वर की अगुवाई न हो, क्योंकि लोग जो जिनको ना तो कोई स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस है, ना कोई ऐसा खुदा की वॉइस आई है, दे स्टार्ट डायरेक्टिंग, एंड व्हाट हैपेंस इफ द लीडर स्टार्ट्स फॉलोइंग, देन वेयर इज द वॉइस ऑफ गॉड? खुदावंद कहता है तू मेरे से सुनेगा और लोगों की अगुवाई करेगा। तो खुदावंद मुझे और आपको ऐसी बुद्धि और ज्ञान दे ताकि हम लोगों के द्वारा न चलाए जाएं, हम परमेश्वर के द्वारा लोगों को चलाने वाले लोग बने। अगर हम देखें जेनेसिस की पुस्तक, उसका 12वां अध्याय, उसकी पहली आयत जो कि अभी हमारे सामने पढ़ी जाएगी, तो हम देखते हैं वहां क्या लिखा है। अगर हम जेनेसिस की पुस्तक उसका 12वां अध्याय उसकी 1 से 3 आयत पढ़ते हैं, तो वहां क्या लिखा है? यहोवा ने अब्राहम से कहा, अपने देश और अपने कुटुंबियों और अपने पिता के घर को छोड़कर उस देश में चला जा जो मैं तुझे दिखाऊंगा, और मैं तुझसे एक बड़ी जाति बनाऊंगा और तुझे आशीष दूंगा और तेरा नाम महान करूंगा, और तू आशीष का मूल होगा। जो तुझे आशीर्वाद दे उन्हें मैं आशीष दूंगा, और जो तुझे कोसे उसे मैं शाप दूंगा, और भूमंडल के सारे कुल तेरे द्वारा आशीष पाएंगे। हम देखते हैं कि अब्राहम जो कि फादर ऑफ फेथ है, जिसकी आवाज के पीछे हम सब चलते हैं, जिसके फेथ के पीछे हम चल रहे हैं, उसने परमेश्वर की वॉइस को सुना। हमको परमेश्वर की वॉइस को सुनने वाला इंसान बनना है, और जब परमेश्वर की वॉइस हमें लीड करेगी तो वो हमें बताएगी तुझे क्या करना है। और अब्राहम को आया कि मैं तुझे आशीष का स्रोत बना दूंगा, मैं तेरे द्वारा पृथ्वी के सारे कुल बरकत पाएंगे। तो परमेश्वर मुझे और आपको बरकत देना चाहता है, मगर वो विश्वास की बरकत है, और विश्वास सुनने से है, और सुनना मसीह के वचन से है।
और हम देखते हैं यीशु मत्ती की पुस्तक उसका 11वां अध्याय और उसकी 15वीं आयत में कुछ कह रहे हैं। उसको हम पढ़ेंगे तो हमें समझ आएगी कि यीशु क्या कह रहे हैं। हाँ, जिसके सुनने के कान हो वह सुन ले। यानी यीशु कह रहे हैं जिसके सुनने के कान हो वो सुन ले। यानी सबके पास कान होते हैं, सबके पास एक्सटीरियर कान तो हैं, मगर बहुत से लोग कान होते हुए भी सुनते नहीं हैं। वो कह रहे हैं अगर खुदाबंद ने तुम्हें कान दिए हैं, तुम सुन सकते हो, तो जरूर से इन बातों को सुन लो। इसका मतलब क्या है? आज की जो गॉस्पेल रीडिंग है उसको रेफर करते हुए यीशु कह रहे हैं कि जॉन द बैप्टिस्ट एक रिपेंटेंस के प्रचार को कर रहा था, और जॉन द बैप्टिस्ट जो था वो एक बैप्टिज्म दे रहा था जिसके अंदर लोग आके धुल रहे थे, अपने गुनाहों को धो रहे थे। और तब यीशु के पास जॉन द बैप्टिस्ट ने अपने चेलों को भेजा और उसने कहा क्या तू वही है जिसका हमें इंतजार करना है, कि जिसका हम इंतजार कर रहे हैं? और यीशु ने उनको कहा जाओ जॉन द बैप्टिस्ट को बता दो। जॉन द बैप्टिस्ट के चेलों को यीशु कहते हैं जाओ उसको जाके बता दो कि अंधों को आंखें मिल रही हैं, बहरे सुन पा रहे हैं, लंगड़े चल रहे हैं। यानी मतलब इंस्टेड ऑफ सेइंग कि हाँ मैं वही हूं, वो अपनी क्वालिटीज बताने लगा, क्योंकि कहने से नहीं है, पावर से है। मीनिंग देयर बाय जॉन द बैप्टिस्ट वेरी क्लियरली कह रहे हैं कि आए प्रभु क्या तू वही है जिसके हम इंतजार कर रहे हैं? हम देखते हैं जॉन द बैप्टिस्ट के अंदर एक थोड़ा सा डाउट है, तभी वो अपने चेलों को भेजता है कि जाओ पता करो क्या मसीहा वही है। जबकि जिस समय मसीहा बैप्टाइज होने आया तो परमेश्वर की आत्मा उतरी, कबूतर की नाई, और एक आवाज आई, फादर सन एंड होली स्पिरिट दे वर ऑल देयर। और जॉन द बैप्टिस्ट ने कहा प्रभु आप मुझसे बपतिस्मा लेने आए हैं, मुझे आपसे बपतिस्मा लेने की जरूरत है। यानी मतलब कि हम देखते हैं जॉन द बैप्टिस्ट जिसके आगे ये सब हो रहा था उसके अंदर भी हल्का सा थोड़े समय बाद डाउट आया, तो उसने कहा अपने डाउट को क्लियर कर लेता हूँ। मगर जब डाउट आया, कंस्ट्रक्टिव डाउट आना कभी भी गलत चीज नहीं है, मगर जब उसके अंदर डाउट आया, इवन व्हेन देयर डाउट केम टू हिम, वो मुड़ा किसकी तरफ? यीशु की तरफ। सो वी हैव टू टर्न टू गॉड। परमेश्वर कह रहा है हमको हर समय खुदावंद की तरफ मुड़ना है। जीसस जो है वो जॉन द बैप्टिस्ट के डाउट को गलत नहीं कह रहे, वो समझ पा रहे हैं क्योंकि वो एक ह्यूमन बीइंग है, और ह्यूमन बीइंग के अंदर डाउट आना बहुत ही अनिवार्य सी बात है। कोई छोटी सी बात हम किसी के बारे में सुन लेते डाउट आ जाता है, क्या ये इसने कहा होगा? अगर ऐसा कहा होगा तो हम अपनी प्लानिंग बना लेते हैं पहले से, क्योंकि डाउट जो है वो हमारे को गलत काम करने की तरफ प्रेरित करने लगता है। परमेश्वर जो है वो कह रहे हैं जॉन द बैप्टिस्ट के अंदर डाउट कंस्ट्रक्टिव डाउट है, और उसने वो वेयर डिड ही टर्न? ही टर्न टू जीसस हिमसेल्फ। He restored my doubt. You resolve my issue. Resolve my issue. मगर हम देखते हैं यीशु की जो हमारी न्यू टेस्टमेंट रीडिंग है, अगर हम उसको डीपली पढ़ें कि यीशु लोगों के जो डाउट है उसके ऊपर बात कर रहे हैं। यीशु क्या कह रहे हैं कि तुम लोग जो हो विश्वास नहीं करते, और ये तुम्हारी कमी है। जो काम यीशु कर रहे थे वो बहुत ही ज्यादा अचरज में डाल देने वाले काम थे। मरे हुए लोग जिंदा हो रहे थे, अंधे आंखें पा रहे थे, लंगड़े चल रहे थे, और जो बोल नहीं सकते थे वो बोल पा रहे थे, जिनको सुनने की ताकत नहीं थी वो सुन पा रहे थे। यानी हर चीज वो हो रही थी जो कि अचंभे से भरी हुई थी, और लोग जो थे फिर भी परमेश्वर पर भरोसा नहीं कर रहे थे। हम देखते हैं जोना जो था वो निनवे में गया और उसने 3 दिन प्रीच किया। He preached in the city of Nineveh 3 days, और निनवे के सारे लोग टाट ओढ़ली, वो राख में बैठ गए, वो रिपेंट करने लगे। और यहाँ यीशु इन जगहों पर
3 साल तक थे और 3 साल तक वो बड़े बड़े मौजे के काम कर रहे थे, मगर हम नहीं देख रहे कि लोग जो है वहां पर रिपेंट कर रहे थे, टाट ओढ़ रहे थे, अपनी बेस से चेंज हो रहे थे। और हम देखते हैं कि यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले का जो मैसेज था वो रिपेंटेंस का था और वो कह रहा था अपने पापों से फिरो ताकि तुम अच्छे बन जाओ। अब यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला जो था वो सबको कह रहा था अपने वेश को छोड़ो, अपने वेश को चेंज करो, बैप्टाइज हो और अपने पुराने मनुष्यत्व को छोड़कर एक नया मनुष्यत्व पहनो। मगर लोग कुछ सुन तो रहे थे मगर उस पर चल नहीं रहे, यानी कि वो चेंज आ नहीं रहा था। जैसा हम देखते हैं निनवे में जब जोना ने प्रीच किया तो राजा से लेके रंग तक सब क्या करने लगे, रिपेंट करने लगे। और यहाँ यीशु 3 साल तक उनके बीच में था, जॉन द बैप्टिस्ट यीशु से पहले था और वहां पर वो वाली जज्बा नहीं था कि सब अपने बुरे वेश को छोड़ दें। और जो यीशु ने बड़े बड़े काम किए, जैसे अंधों को आंखें दी, कोढ़ी को चंगा किया, लंगड़ों को चंगा किया, जिनको सुनना और समझना नहीं था उनको उसने सही किया, यानी जो सुन नहीं सकते थे, जो बोल नहीं सकते थे, सबको सही किया। इतने बड़े बड़े आश्चर्य कर्म होने के बाद भी ये लोग they were not there to praise God, ये चेंज नहीं हो रहे थे, खुदा की तरफ नहीं आ रहे थे, उल्टा ये क्रिटिसाइज कर रहे थे और they were indifferent। तो खुदावंद ने उनकी वेश को देखकर उनको कहा you are rejected human beings, तुम रिजेक्टेड लोग हो। क्यों? क्योंकि तुम्हारे बीच में जो अच्छे अच्छे काम हुए, अगर ये सदोम और गमोरा में किए जाते तो वो कब का चेंज हो जाते, वो कब का रिपेंट कर लेते और तब वो तबाह भी नहीं होते। और इसलिए जब कयामत का दिन आएगा तो सदोम और गमोरा की और सूर और ये जो सदोम और गमोरा की सिटीज हैं उनकी दशा आपसे बेहतर होगी। यानी मतलब खुदावंद कह रहा है अगर हम अपनी आंखें बंद कर लेते हैं किसी चीज को, किसी अच्छाई को, यानी अच्छे को अच्छा कहो और बुरे को बुरा कहो, ऐसा कहते हैं। और प्रभु तो एक कदम आगे चले गए कि तुम बुरे को भी बुरा मत कहो, बुरे को भी अच्छा बनाने की कोशिश करो। तो खुदावंद मुझे और आपको कह रहे हैं डाउट्स में से निकलो और परमेश्वर की तरफ मुड़ो, क्योंकि अगर तुम ऐसे अच्छे काम नहीं करोगे तो you will lose everything। अगर हम देखें तो यहूदी एक किताब पढ़ा करते थे, उस किताब को कहते थे मिद्राश। जो मिद्राश जो थी वो एक एंशिएंट जूइश ट्रेडिशन टीचिंग बुक थी और वो बताती थी, जो मिद्राश थी वो बताती थी टीचर्स को कि तुम्हें किस प्रकार से पढ़ाना है। तो वो कुछ एग्जाम्पल दिया करते थे। तो उसी प्रकार से मिद्राश के उस तरीके को फॉलो करते हुए यीशु बोले मैं आज के लोगों को किससे मिलाऊं, किसके साथ उनकी उपमा दूं। ये तो उन बच्चों के समान है, उन बेवकूफ बच्चों के समान है जिन्हें समझ नहीं आ रहा कुछ भी। यानी जब ब्याह के गीत गाए गए तो उनका डांस नहीं किया, और जब शोक के गीत गाए गए, फ्यूनरल सॉन्ग्स गाए गए, डर्ज गाएगी तो वो रोए नहीं, उन्होंने विलाप नहीं किया। यानी मतलब दोनों चीजों में वो बुद्धू रह गए। यानी यीशु किस चीज को रेफर कर रहे थे? जैसे हम जब छोटे बच्चे थे तो अपने घर के अंदर एक छोटा सा घर बना देते थे और घर घर खेलना करते थे। आप लोगों ने भी ऐसा ही देखा होगा अपने जब छुटपन में कि हम घर के अंदर घर बना लेते थे, टेबल के नीचे घर बन जाता था, चादरें लग जाती थी और उसके अंदर टेबल डाइनिंग टेबल के नीचे घुस के एक घर बना के बैठ जाते थे। ना उसमें पंखा होता था ना कुछ, मगर हम उसमें बड़े खुश खेलते थे। क्यों? क्योंकि हम कुछ नहीं तो चेयर के नीचे भी घर बन जाता था, कहीं पे भी घर बन जाता था, चादरें लगाई घर बना दिया, घर के अंदर घर, यानी घर घर खेलते थे। मगर उस समय के लोग, उस समय के बच्चे जिस समय यीशु थे वो 2 गेम बहुत पसंद किया करते थे, क्योंकि घर बहुत छोटे थे तो घर में घर बनाने की तो कोई बात ही नहीं थी। मगर वो जो गेम था उनके 2 बहुत ही इम्पोर्टेंट फेस्टिवल्स हुआ करते थे या इवेंट्स हुआ करते थे, एक तो शादी और एक फ्यूनरल, जिसके लिए बहुत ज्यादा शोक किया जाता था। फ्यूनरल में बहुत ज्यादा शोक किया जाता था और
शादी पे बहुत ज्यादा खुशियां मनाई जाती थी। तो शादी वॉज टेकन एज वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट इवेंट्स इन लाइफ। तो लोग शादी के ऊपर बहुत खर्चा भी कर देते थे और हर प्रकार का, तो बच्चे भी अपने माँ बाप को या बड़ों को इमिटेट करके वही गेम खेला करते थे। तो दो गेम्स खेले जाते थे और वो एक गेम था शादी और दूसरा गेम था फ्यूनरल। तो जब वो गेम खेला करते थे तो ज्यादातर बच्चे तो खेल रहे होते थे, मगर कुछ बच्चे उस गेम को चलने नहीं देते थे। क्यों? क्योंकि उनको वो नहीं कर रहा था जो कि सारे बच्चे खेल रहे हैं। यानी परमेश्वर कह रहा है आज के लोगों की उपमा मैं किससे दूं? मिद्राश के वेश को याद करते हुए यीशु ने कहा, मैं टीचर्स उपमा दिया करते थे, तो यीशु ने कहा आज के लोगों की उपमा मैं किससे दूं? मैं उनकी उपमा ऐसे लोगों से देता हूं जो कि ऐसे बेवकूफ बच्चों से देता हूं जो कि जब फ्यूनरल का गेम खेल रहे होते थे तो वो रो नहीं रहे होते थे, और जब मैरिज की सॉन्ग्स गा रहे होते थे तो वो डांस नहीं कर रहे होते थे। यानी मतलब दोनों केसेस में वो बुद्धि निकले। यानी परमेश्वर कह रहा है मैं वो अपने और जॉन द बैप्टिस्ट की उपमा में ये बात बोलता है। अब जॉन द बैप्टिस्ट जो थे वो ना तो खाना खाते थे, वो लोकेस्ट खाते थे, टिड्डियां खाते थे और वाइन नहीं पीते थे और कैमल की स्किन के कपड़े पहनते थे। और उस जगह में कितनी गर्मी होती थी, और उस गर्मी में अगर आज आप अपना कुर्ता पजामा बनवाते हैं तो आप कहते हैं जी टोटल कॉटन होना चाहिए, कॉटन के सिवा मुझे और कुछ नहीं चाहिए, तो थोड़ा ठंडा हो। मगर अगर ऐसे समय में जहाँ इतनी गर्मी है वहां कैमल का कपड़ा पहने हुए है कोई, तो कैमल के तो कपड़े के ऊपर कैमल का फर भी लगा हुआ है, तो कितना गर्म हो रहा होगा। तो जब लोग वहां फ्यूनरल की पोजीशन में होते थे तो हम देखते हैं लोग राख होती लेते थे, दुख मनाते थे, राख में बैठ जाते थे। तो जॉन द बैप्टिस्ट जो है वो फ्यूनरल के सीन को दिखाते हैं कि ना तो वो बेचारे खा रहे थे, ना वो कुछ पी रहे थे, कपड़ा भी ऐसा कैमल की स्किन का पहन रहे थे, और लोगों ने उसके लिए कहा इसके अंदर शैतान है। तो लोगों ने उसके अच्छे काम को तो लिया नहीं। वो क्या बता रहे थे, वो प्रीचिंग क्या कर रहे थे कि अपने वेज से रिपेंट, अपनी वेज को अच्छा बनाओ, अपनी वेज में चेंज लाओ, रिपेंट करो, गंदी आदतें छोड़ो, अच्छी आदतों को अपने अंदर अपनाओ। और ये चीजें थोड़ी देर तो पहचाने इन बातों को, मगर जब उन्होंने कहा अगर इनकी बातों पे चलने लगे तो ये तो सारे हमारे ट्रेडिशंस खराब कर देंगे। यानी ट्रेडिशन क्या थे कि वो अपने ट्रेडिशंस में हर तरीके के अन्ना बाजार में उन्होंने पूरे के पूरे बाजार खोल लिए थे। तो उनके जॉन द बैप्टिस्ट और जीसस दोनों की टीचिंग इन लोगों को पता थी कि सही है, अच्छी है, ठीक है, मगर वो उनको एक्सेप्टेबल इसलिए नहीं थी क्योंकि उनके कारोबार बन रहे थे। तो इसलिए वो जो थे उन्होंने उसको क्रिटिसाइज करना चालू कर दिया जॉन द बैप्टिस्ट को कि इसके अंदर कोई ना कोई डीमन है, इसके अंदर कोई ना कोई शैतान है, तभी ये कुछ खाता पीता नहीं है, ये लोकेस्ट खाता है, हनी खाता है और कैमल के कपड़े पहनता है। उसके बाद आए यीशु। यीशु की मिनिस्ट्री को हम किससे उपमा देंगे? हम मैरिज फेस्टिवल से उपमा देंगे। अब मैरिज फेस्टिवल से क्यों देंगे यीशु की मिनिस्ट्री को उपमा? क्योंकि यीशु जहां जाते थे वो sorrow को he would turn into gladness। यानी एक घर में एक लड़की मरी भी है और वो उसको चंगा कर देते हैं तो क्या हो जाता है? खुशियां। sorrow was turned into gladness। और हम देखते हैं कहीं कोई लेपर है, यानी मतलब कोई कोढ़ से पीड़ित है, उसने सारे कोढ़ियों को चंगा कर दिया, 10 कोढ़ी उसके पास आए, उसने सभी को चंगा कर दिया। तो कोढ़ियों के अंदर कितनी खुशी आ गई होगी। तो वो सौरों को भी, इसमें गम को भी खुशी में बदल देते थे। तो उसका मतलब क्या है? मैरिज फेस्टिवल में अर्थ में रहते थे, मैरिज की जॉय में। यानी जीसस की मिनिस्ट्री इज कंपेयर्ड टू मैरिज एंड जॉन्स मिनिस्ट्री इज कंपेयर्ड टू फ्यूनरल सॉन्ग्स। एंड दैट इज व्हाट वाज रियलिटी कि यीशु जहां जा रहे थे वहां वो लोगों के साथ हो जाते थे, वो सिनर्स के साथ हो जाते थे, गुनाहगार के साथ हो जाते थे,
मगर वो गुनाहगार को भी गुनाह से हटा। दैट वाज द क्वालिटी ऑफ जीसस। एक लड़की थी जिसका नाम था मेरी मगदलीनी, उसके अंदर 7 बुरी आत्माएं थी, और जब वो यीशु से मिली तो वो चेंज हो गई। शी बिकेम अ पाप एंड साफ लेडी, और वो अच्छी बन गई। तो खुदावंद जो थे वो गुनाहगारों के साथ हो जाते थे, मगर ऐसे अच्छे लीडर के लिए भी उन्होंने क्या कहा, उन्होंने उसको भी क्रिटिसाइज कर दिया। और इसलिए खुदावंद कहते हैं आई टायर एंड साइडोन, तुम्हारी हालत जो है बहुत ही बुरी होने वाली है, क्योंकि निनवे के लोग जोना का शब्द सुनकर चेंज हुए, और तुम लोगों ने मेरे मिरेकल्स को 3 साल देखा, मगर तुम्हारे अंदर कोई भी चेंज नहीं आया। यू आर इनडिफरेंट, जैसा चल रहा है चल रहे हो। यानी मतलब खुदा की टीचिंग को सुनकर उस पर मन न लगाना या अपने अंदर उसको काम न करने देना, ये इटसेल्फ में खुदा का तिरस्कार है। जो मेरे साथ नहीं वो मेरे विरोध में है, प्रभु का वचन कहता है। मत्ती की पुस्तक उसका 12वां अध्याय उसकी 30वीं आयत, अगर बीच में हम पढ़ देंगे तो सुनेंगे क्या लिखा है। मत्ती की पुस्तक उसका 12वां अध्याय उसकी 30वीं आयत। जो मेरे साथ नहीं वे मेरे विरोध में है, और जो मेरे साथ नहीं बटोरता वह बिखेरता है। और हाँ, यानी जो मेरे साथ नहीं बटोरता वो बिखेरता है, यानी जो मेरे साथ नहीं है वो मेरे विरोध में है, और जो मेरे साथ नहीं बटोरता वो बिखेरता है। यानी हमको परमेश्वर को साथ लेना कितना जरूरी है, मगर वो लोग परमेश्वर को साथ लेना भूल गए। वो लोगों ने परमेश्वर के कामों को देखा, बड़े बड़े मौजों को देखा, मगर वो उसको साथ लेना भूल गए। वो अंदर कोई चेंज ही नहीं लाए, उनके फाइबर में कोई चेंज नहीं आया, अब उनके फैब्रिक में कोई चेंज नहीं आया। यानी परमेश्वर कह रहा है हमें परमेश्वर के वचन को अपने अंदर के फाइबर में डाल देना है। फैब्रिक जो होता है कुछ फाइबर से बनता है, कुछ सूतों से बनता है, और सूत किसी चीज से बनता है। और वो परमेश्वर कह रहा है कि आप जिस चीज से बने हुए हो, आपके रोजे रोजे में परमेश्वर का वचन परिवर्तन आना चाहिए। यानी यू शुड बी कंप्लीटली चेंज्ड। तो उन्होंने कामों को तो देखा मगर विश्वास नहीं किया। हम देखते हैं इजराइल के लोगों ने, जो कि 6 लाख के करीबन थे जब वो इजिप्ट से निकले, 6 लाख थे, और जब वो रेड सी से क्रॉस किए तब भी 6 लाख थे। वो मरा गए, वहां पर भी वो 6 लाख थे, वो आगे चलते गए कादेश बरूना का, वो 6 लाख थे, कोई भी नहीं मरा। मगर वहां कादेश बरूना पे जाके वहां वो खुदावंद पर विश्वास न करने के कारण खुदावंद उनसे मिल गया। उन्होंने रेड सी में से गुजरे थे, पानी दोनों तरफ खड़ा था और वो उसमें से गुजर रहे थे, मगर उन्होंने फिर भी परमेश्वर पर विश्वास नहीं किया। यानी परमेश्वर के हाथ को देखकर विश्वास न करना अपने लिए और भी ज्यादा कज़ा को बुलाने जैसा है। परमेश्वर कह रहे हैं कि आई टायर एंड साइडोन, तुम्हारी हालत भी ऐसी बुरी होगी अगर तुम खुदावंद के वचन को सुनकर वो तुम इंडिफरेंट हो, तुम कुछ भी नहीं कर रहे, चेंज ही नहीं ला रहे अपने अंदर, देन यू आर ऑफ नो यूज। यानी परमेश्वर की चाहत क्या है, उसकी मंशा ये है कि हम सब परमेश्वर के वचन को सुने और अपने अंदर चेंज लाए। अगर हम मत्ती की पुस्तक उसको 9वां अध्याय उसकी 14 से 15 आयत पढ़ते हैं तो वहां क्या लिखा है। तब यूहन्ना के चेले ने उसके पास आकर कहा, क्या कारण है कि हम और फरीसी इतना उपवास करते हैं पर तेरे चेले उपवास नहीं करते। यीशु ने उससे कहा, क्या बराती जब तक दूल्हा उसके साथ है शोक कर सकते हैं, पर वे दिन आएंगे जब दूल्हा उनसे अलग किया जाएगा, उस समय वे उपवास करेंगे। हाँ, हम देखते हैं परमेश्वर जो थे वो जहां पर भी जा रहे थे वहां जॉय ही जॉय थी, और उसके चेलों के साथ भी जॉय जॉय थी, क्योंकि खुदावंद कहता है जहां मैं हूं वहां बरकत ही बरकत है। अगर आपके साथ परमेश्वर है तो आपके जीवन में जॉय ही जॉय होगी। यानी मतलब आपकी सॉर्रो विल टर्न इनटू जॉय, क्योंकि खुदावंद आपको परिवर्तित कर देगा। कई बार सॉरोज हमारे ऊपर आती हैं तो हम सोचते हैं कि क्यों आ रही है। खुदावंद कहता है मैं तुझे विश्वास करना सिखा। परमेश्वर अपने लोगों को कह रहे हैं डोंट बी करप्ट इन योर माइंड्स, क्योंकि
यीशु कह रहे हैं एक करप्ट ह्यूमन विजडम जो है वो करप्ट ह्यूमन डीड्स प्रोड्यूस करती है। अगर आपके अंदर करप्शन का थॉट आ गया तो आप करप्ट काम करने लगते हैं, मगर अगर आपके अंदर राइचस डिवाइन एम्पावर्ड विजडम है तो आप राइचस डीड्स करने लगते हैं। यानी यीशु और जॉन के अंदर राइचस डिवाइनली एम्पावर्ड विजडम थी, तो इसलिए वो राइचस डीड्स करते जा रहे थे। अगर हम देखें दूसरा राजा उसका 22वां अध्याय और उसकी 13 आयत, तो उसमें क्या लिखा है? यह पुस्तक जो मिली है उसकी बातों के विषय तुम जाकर मेरी प्रजा को और सब यहूदियों की ओर से यहोवा से पूछो, क्योंकि यहोवा की बड़ी ही जलजलाहट हम पर इस कारण भड़की है कि हमारे पुरखाओं ने इस पुस्तक की बात ना मानी कि जो कुछ हमारे लिए लिखा है उसके अनुसार करते। यानी परमेश्वर अपने लोगों को कह रहा है कि हमारे जोशाया अपने लोगों को कह रहा है कि ये पुस्तक जो कि परमेश्वर का वचन है उसकी बात हमारे पुरखाओं ने नहीं मानी, और क्योंकि उन्होंने नहीं मानी इसलिए उनके ऊपर नुकसान ही नुकसान आ गया। परमेश्वर भी यीशु की एक कहानी सुनाते हैं और वो एक पैराबल ऑफ द वेडिंग फीस्ट है। अब एक वेडिंग हो रही थी और वहां पर राजा ने अपने बेटे की शादी की और तब उसने नेकहारियों को बुलाया और उसने कहा कि नेकहारियों को बुलाओ। तो अगर हम लूका की पुस्तक उसका 17वां अध्याय उसकी 26 से 28 आयत देखें और 30वीं आयत भी पढ़ें तो वहां क्या लिखा है? जैसा नूह के दिनों में हुआ था वैसा ही मनुष्य के पुत्र के दिनों में भी होगा। जिस दिन तक नूह जहाज पर न चढ़ा उस दिन तक लोग खाते पीते थे और उनमें विवाह होते थे। तब जल प्रलय ने आकर उन सबको नष्ट किया। और जैसा लूत के दिनों में हुआ था कि लोग खाते पीते लेन देन करते, पेड़ लगाते और घर बनाते थे, मनुष्य के पुत्र के प्रकट होने के दिन भी ऐसा ही होगा। यानी मतलब अगर हम दो रेफरेंसेस अभी हमने बोले, एक तो बोला वेडिंग फीस्ट का। वेडिंग फीस्ट के जब राजा ने अपने बेटे का ब्याह किया तो उसने सबको बुलाया, तो कि आओ। नेकहारी जो थे वो बहुत से नेकहारियों ने उसके सर्वेंट्स को नहीं मारा, उसको ना पीटा ना बेइज्जत किया ना कुछ किया, मगर उन्होंने उनकी बात की अवहेलना नहीं की, उन्होंने उनकी बात को रखा भी। यानी जब उसने कहा आओ ब्याह का घर तैयार है, ब्याह का भोज तैयार है, आओ, तो कोई अपने महल को देखने चला गया, कोई अपनी शादी कर रही थी, कोई अपना फॉर्म ले रखा था, फॉर्म तो लैंड खरीदा हुआ था वो लैंड देखने चला गया। दे वर इनडिफरेंट। और यीशु कह रहे हैं कि आज के लोगों की उपमा मैं उनसे दूंगा क्योंकि इतने बड़े बड़े काम उनके बीच में हुए मगर उन्होंने उस बात की सुनी नहीं, उस बात पे गौर ही नहीं किया। और नूह के जमाने में नूह जो था वो 120 साल तक वो क्या बना रहा था? जहाज बना रहा था और लोग उसकी हंसी उड़ा रहे थे और वो उसकी खिल्ली उड़ा रहे थे। अरे ये डेजर्ट के अंदर जहाज बना रहा है, पानी तो पाया नहीं यहाँ पे, ये बोट चलाएगा था। और बोट भी कोई छोटी बोट नहीं थी, बहुत बड़ी थी। और नूह की किश्ती जो थी वो इटसेल्फ में एक विटनेस थी लोगों के लिए कि नूह इतनी बड़ी किश्ती बना रहा था जिसकी जो थी 45 फुट जो थी उसकी चौड़ाई थी और 75 फुट उसकी लंबाई थी और वो जो थी 30 फुट ऊंची थी। तो यू कैन इमेजिन कोई छोटी किश्ती नहीं और इतनी बड़ी किश्ती नूह बना रहा था और लोगों को कुछ समझ नहीं आ रहा था, वो उसकी खुली उड़ा रहे थे। और क्योंकि उन्होंने उस बात की केयर नहीं की, जब तक नूह उस किश्ती में चढ़ नहीं गया तब तक सब कुछ सही था। वो शादियां भी हो रही थी, ब्याह भी हो रहे थे, सब कुछ लेन देन हो रहा था। मगर जब नूह उस किश्ती में चढ़ गया और उधर किश्ती का दरवाजा बंद हुआ तो बरसात आई, बारिश आई, पानी के मुंह खुल गए और तब गुलाल आ गया, तब मौत आ गई। यानी मतलब ये परमेश्वर मुझे और आपको कह रहा है हम वचन की अवहेलना करते चले जाते हैं, वचन की अवहेलना करते चले जाते हैं और ये चीजें खुदावंद को पसंद नहीं है। अगर हम देखें यीशु कहते हैं आई कोराइजन आई बेथसदा,
अगर जो काम तुम्हारे अंदर हुए थे, अगर तुम उनको सुनते तो तुम क्या ही चेंज लोग हो जाते। मगर क्योंकि तुमने उन सब बातों को रिजेक्ट किया, इसलिए तुम्हारे गुनाह जो है और भी बढ़ गए, क्योंकि तुमने देखते हुए भी विश्वास नहीं किया। 6 लाख इजरायली जंगल में मारे गए क्योंकि उन्होंने खुदावंद की बातों को विश्वास नहीं किया। वो पानी में से गुजरे, वो जंगल में से गुजरे, मर्रा नाम की जगह में उन्होंने कड़वे पानी को मीठा होते देखा, सांपों से बचे, हर जगह पर खुदा के हाथ में देखा, मगर उन्होंने फिर भी विश्वास नहीं किया। जो शायद ऐसे ही कहते हैं कि ये किताब हम पढ़ते नहीं हैं, इसलिए हम पीछे रह जाते हैं। टायर एंड साइडोन के लिए जीसस कहते हैं, आई टायर एंड साइडोन, तुम्हारी हालत क्या होगी। अब टायर के बारे में मैं आपको जो जगह है टायर, इसके बारे में कुछ बाइबल में ओल्ड टेस्टमेंट में लिखा है। इज़ेकिएल नबी की पुस्तक उसका 28वां अध्याय उसकी 11 से 15 आयत अगर हम पढ़ें तो वहाँ क्या लिखा है। फिर यहोवा का यह वचन मेरे पास पहुंचा, हे मनुष्य के संतान, सोर के राजा के विषय में विलाप का गीत बनाकर उससे कह, परमेश्वर यहोवा यूं कहता है, तू तो उत्तम से भी उत्तम है, तू बुद्धि से भरपूर और सर्वांग सुंदर है, तू परमेश्वर के अदन नामक बारी में था, तेरे पास आभूषण, मणिक, पत्रात, हीरा, फिरोजा, सुलेमानी मणि, यशब, नीलमणि, मरकत और लाल सब भांति के मणि और सोने के पहरावे थे। तेरे डफ और बांसुरियां तुझी में बनाई गई। जिस दिन तू सिरजा गया था उस दिन वे भी तैयार की गई थी। तू छाने वाला अभिषक्ति स्वरूप था। मैंने तुझे ऐसा ठहराया कि तू परमेश्वर के पवित्र पर्वत पर रहता था। तू आग के सरीखे चमकने वाले मणियों के बीच में चलता फिरता था। जिस दिन से तू सिरजा गया और जिस दिन तक तुझ में कुटिलता ना पाई गई, उस समय तक तू अपनी सारी चाल चलन में निर्दोष रहा। हम देखते हैं टायर एंड साइडोन को यीशु रेफर कर रहे हैं। टायर के लोग, वहां की टायर के राजा की बात होगी कि टायर का एक राजा जो था, उससे जब इज़ेकिएल मिलने गया तो उसने कहा, आई लूसीफर, वो उसके अंदर लूसीफर को बैठा हुआ देख रहा था। और वहां पर हम देखते हैं लूसीफर का नाम मेंशन हुआ कि आए लूसीफर, तू कैसे गिराया गया, क्यों? क्योंकि तूने विश्वास नहीं किया। परमेश्वर उन टायर की सिटी को कह रहा है कि तुमने क्योंकि विश्वास नहीं किया, इसलिए शैतान ने तुम्हें आगे पकड़ लिया। यानी मतलब कि अगर हम विश्वास नहीं करते, अविश्वास हमारे को किसका कौर बना देता है? शैतान का कौर बना देता है। जो विश्वास करते हैं, विश्वास आपको आसमान में यानी हेवन में पहुंचा देगा और अविश्वास आपको हेल में पहुंचा देगा। विश्वास और अविश्वास की इतनी ताकत है। अगर आप विश्वास नहीं करेंगे तो आप हेल में जाएंगे, अगर आप प्रभु पर विश्वास करेंगे तो आप हेवन में जाएंगे। तो परमेश्वर कह रहा है, तुम लोगों आए टायर के राजा, तूने क्योंकि विश्वास नहीं किया, इसलिए शैतान ने तुझे अपना कौर बना लिया और तू शैतान हो गया। तो खुदावंद कह रहा है, आए कैपर्नहुम, तू क्या सोचता है कि तू ऊंचा उठाया नहीं, तू नीचा किया गया। अब कैपर्नहुम के लिए परमेश्वर ऐसा क्यों कह रहे हैं, ये पूरी सिटी के लिए ऐसा क्यों कह रहे हैं? क्योंकि अगर हम देखें कैपर्नहुम में क्या क्या काम किए। कैपर्नहुम में जैरियस की डॉटर जो थी उसको खुदावंद ने वापस जिंदा कर दिया। कैपर्नहुम में ही नोबल मैन का जो बेटा था वो चंगाई पाया। कैपर्नहुम में जीसस ने एक डीमनिक को ठीक किया। पीटर की मदर इन लॉ भी कैपर्नहुम में थी जब वो चंगाई पाई। एक औरत ने जब वो जैरियस के घर पे जा रहा था तो पीछे से आकर उसका गारमेंट छू दिया, उसका कपड़ा छू दिया और वो चंगी हो गई। और ये भी काम कहाँ हुआ? कैपर्नहुम में। एक सेंचुरियन यीशु से मिलने आया और उसने कहा, मेरा बेटा बीमार है, मेरा सर्वेंट बीमार है, आए प्रभु इसको चंगाई दे दे। तो उसने कहा, मैं तेरे साथ चलता हूँ। उस सेंचुरियन ने क्या कहा? आई एम ऑल्सो अंडर अथॉरिटी, मैं भी अथॉरिटी के अंदर हूँ और मैं जो हूँ। कैपर्नहुम में ही वो सेंचुरियन जो था परमेश्वर के पास आया और उसने कहा, यीशु ने कहा, मैं तेरे घर चलता हूँ। तो यीशु ने जब कहा तो उसने कहा, मैं भी अथॉरिटी में हूँ आए प्रभु,
मैं एक दास से कहता हूँ जा तो वो जाता है, मैं दूसरे से कहता हूँ आ तो वो आता है, बस तू कह दे और मेरा सर्वेंट चंगा हो जाएगा। और यीशु अपने लोगों की तरफ मुड़ा होने का, मैंने यहूदियों में भी ऐसा विश्वास नहीं पाया जो कि इस सेंचुरियन के अंदर में पाया। यानी विश्वास ऐसा होना चाहिए, प्रभु तू कह दे और मेरा जो सर्वेंट है, मेरा जो बेटा है वो चंगा। और जब वो वापस लौट रहा था वो सेंचुरियन, तो रास्ते में उसके दास मिले, तो उन्होंने बताया कि जिस समय तू प्रभु से मिला था उसी समय तेरा बेटा जो था वहां चंगा हो गया। तो ये सब काम कहाँ हो रहे थे? कैपर्नहुम में हो रहे थे। एक डम आदमी जिसको डीमन ने पकड़ रखा था, उस डम डैमनिक को खुदावंद ने कैपर्नहुम में चंगा किया था। एक ऐसा बच्चा जो एक ऐसा आदमी जो कि पैरालाइज था और घर में भीड़ थी, तो लोगों ने छत को खोल के उसको नीचे उतारा। ये काम कहाँ हुआ? कैपर्नहुम में हुआ। कैपर्नहुम में इतने काम हुए, मगर फिर भी कैपर्नहुम के लोगों ने ना तो टाट हुआ, ना खुदावंद की तरफ मुड़े, वो परमेश्वर यीशु को ना जाने। यानी इसलिए खुदावंद कहते हैं तेरी दशा, क्योंकि इतने बड़े बड़े काम तेरे में हुए जो कि प्रूव कर रहे हैं कि मैं मसीहा हूं। मसीहा के सिवा और कोई किसी को अंधे को आंखें दे ही नहीं सकता, मसीहा के सिवा कोई किसी बीमार को चंगा कर ही नहीं सकता। तो जो इतने बड़े बड़े काम तेरे बीच में हुए, फिर भी क्योंकि तुमने उसकी अवहेलना की, उसको ध्यान में नहीं रखा, इसलिए तुम उसकी तरफ रजू ही नहीं किया। तो खुदा वो कहता है तुम्हारी हालत जो है सदोम और गमोरा से भी बदतर होगी। यानी कि वी रिजेक्ट द वर्ड ऑफ गॉड। परमेश्वर का वचन हमारे अंदर चेंज लाना चाहिए। अगर हमारे अंदर चेंज नहीं आया तो हम तो वैसे के वैसे रह गए। यानी परमेश्वर का वचन आज जब हमारे मन में घुसेगा, सच्चे दिल से सुना जाएगा और वो हमारे अंदर परिवर्तन लाएगा, तभी तो हम परिवर्तित होंगे। तो परमेश्वर हमें कह रहा है क्योंकि तुम सुनकर समझते नहीं हो, अगर समझते तो तुम परिवर्तित लोग हो जाते। इसलिए तुम्हारी दशा जो है वैसी की वैसी रहती है जैसे तुम पहले थे। और इसलिए वचन के सुनने से तुम और भी ज्यादा क्या बन गए? गुनहगार बन गए। इसलिए तुम्हारा जो है सुनना जो है उसके बाद तुम्हारे अंदर परिवर्तन आना चाहिए। यू शुड बी चेंज्ड टू द वर्ड ऑफ गॉड। परमेश्वर अपने लोगों को यही सिखाना चाह रहा है कि वी शुड फॉलो द वर्ड ऑफ गॉड। अगर हम रोमियो की पुस्तक उसका 10वां अध्याय उसकी 13 से 21 आयत तक जब हम देखते हैं, हम वर्स बाय वर्स देखना चाहेंगे क्योंकि अभी हमारे सामने रीडिंग खुली गई, तो हम समझने की कोशिश करेंगे। आज का हमारा थीम है द मैसेंजर्स ऑफ गॉड आर ऑफन अनहीडेड। यानी वो कहते रहते हैं, लोग सुनते नहीं है। परमेश्वर के दास बताते रहते हैं, वीडियो बना के भेजते रहते हैं, लोग वीडियो खोल के देखते भी। और फिर जब पाती साहब से मिलते हैं, पाती साहब देखा? हाँ देखा, हमने तो बहुत देखा। अगर सबने देखा होता तो एक चेंज आया होता। आज हम इस रोमन्स की चैप्टर को जब हम पढ़ रहे हैं तो हमें समझ आएगा कि परमेश्वर का वचन क्या कह रहा है। हाँ, रोमियो 10 उसकी 13 से 21। क्योंकि जो कोई प्रभु का नाम लेगा वह उद्धार पाएगा, फिर जिस पर उन्होंने विश्वास नहीं किया वह उसका नाम कैसे ले। हाँ, यानी मतलब जो कोई परमेश्वर के ऊपर वचन को सुनेगा और अपने अंदर चेंज लाएगा वो उद्धार पाएगा। मगर जिसके बारे में सुना ही नहीं उसके बारे में कैसे वो विश्वास करेंगे? यानी मतलब वचन सुनाना भी बहुत जरूरी है। अब पादरी लोग तो वचन ऑनलाइन भी दे रहे हैं, मगर टीवी में वचन खोल के देखना तो आपका काम है। हम वचन तक तो खोल के देखते नहीं है। आपके घर तक वचन पहुंचाया जा रहा है इसलिए क्योंकि हम चर्च में नहीं मिल पा रहे, मगर क्या वचन को खोल के देखना हमारा काम नहीं है? हम देखते ही नहीं है। क्यों? क्योंकि हमने अपने अंदर एक आत्मा डाल ली है कि हमें सुनना ही नहीं। और खुदावंद कहता है ऐसे लोग जिनके कानों पर जू नहीं रहती, यानी मतलब वो सुनते नहीं है, उन पर बरकत कैसे आएगी? यानी जिसको बारे में उन्होंने सुना नहीं उनके ऊपर विश्वास कैसे करें? तो यानी सुनना जो है वो मसीह के वचन से है और विश्वास सुनने से है। तो हमको विश्वास तभी तो बढ़ेगा जब हम परमेश्वर के वचन को सुनेंगे। और वचन कौन सुनाएगा? परमेश्वर के दास सुनाएंगे।
मगर उनका भेजा हुआ मैसेज अगर कोई खोल के सुनेगा ही नहीं, हम नहीं सुन रहे, क्यों? क्योंकि भैया उनका एक व्यू नहीं बढ़ना चाहिए। तो कितनी बेवकूफी की बात है। व्हाट आर यू लूजिंग? यू आर लूजिंग समथिंग एंड इट इज नॉट टुडेज थिंग। ये शुरू से बात ऐसी चली जा रही है, ये 2000 साल पहले लिखा गया है, ये जो मैं पैसेज पढ़ रहा हूँ। तो हम पढ़े आगे। हाँ, और प्रचारक बिना कैसे सुने? अब जब कोई प्रचार ही नहीं है, प्रचारक ही नहीं है, तो हम कैसे सुने? और यदि भेजे न जाए तो कैसे प्रचार करें? यानी अगर भेजे ना जाए, यानी परमेश्वर ने चुना है, परमेश्वर ने प्रचारकों को भेजा है, परमेश्वर ने अपने दास को चुनकर चर्चों में हेड बनाया है, और हम उन दासों की भी सुनना नहीं चाहते। क्यों? क्योंकि हम उनको परमेश्वर के दास मानते ही नहीं, क्योंकि हमने अपने मनों को मोटा कर दिया, हमने अपनी कानों को भाया कर लिया है। परमेश्वर कहता है तुम्हारे सुनने के कान हो तो सुन लो। यानी मतलब अगर तुम्हारे पास कान है, ऊपर का एपरेटस कान का लगा हुआ है, तो जरूर नहीं कि आप सुन लोगे। कई बार आप बच्चों को कहते हैं बेटा पानी ला के दे दे, तो कुछ पानी नहीं आता, तो हम कहते हैं बेटा तू पानी नहीं लाया, पापा आपने मुझसे लाई था। तो यानी मतलब हमारे कान है मगर हमने सुना ही नहीं। यानी परमेश्वर कह रहा है अगर तुम्हारे कान है तो सुन लो। यानी मतलब हम कान तो रखते हैं, आंखें तो रखते हैं, कितने हमारे बच्चे जो है वो वचन सुनते ही नहीं। अगर पादरी फोन करके पूछ ले कि भैया तुमने वचन सुना, अरे पादरी साहब मैंने सुना ही, मैं तो, अरे कब सुनोगे? परमेश्वर मुझे और आपको अपने वचन के द्वारा कह रहा है अगर भेजे ना जाए तो कैसे प्रीच करें। हाँ, आगे जैसा लिखा है उनके पांव क्या ही सुहावने हैं जो अच्छी बातों का सुसमाचार सुनाते हैं। क्या ही सुहावने है वो वचन जो कि खुदावंद का वचन तुम्हारे पास लाते हैं, जो कि अच्छी अच्छी बातें आपको बता रहे हैं कि तुम्हें अपने आप को चेंज करना है, परिवर्तित करना है। हम बड़े बड़े सपने तो बहुत देखते हैं, हम चाहते हैं हमारे पास राजा जैसी चीजें हों, मगर हम काम बिल्कुल नहीं करना चाहते। परमेश्वर कह रहा है जब तक हम काम नहीं करेंगे तब तक हम कुछ बनेंगे नहीं। यानी हम सीढ़ी पे टॉप पे तो पहुंचना चाहते हैं, मगर कदम एक पहली पे भी नहीं रखना चाहते। हम सीढ़ी पर ऊंचे पहुंचने के लिए हमें पहली सीढ़ी से पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, तब नवीं, 10वीं, 11वीं आती है। हम सीधा 10वीं और 11वीं पौड़ी पे पहुंचना चाहते हैं, एंड दिस इज नॉट पॉसिबल, क्योंकि हमको हर एक स्टेज पे डेवलपमेंट चाहिए और वो डेवलपमेंट हमारे लिए बहुत जरूरी है। नहीं तो हम फिसल के गिर जाएंगे, क्योंकि हमको बैलेंस करना नहीं है। परमेश्वर कह रहा है आई वांट टू डेवलप यू स्लोली एंड स्टेडली, बट आई वांट यू टू गो टू हाइट्स। मैं चाहता हूं कि तुम ऊपर लो। उकाब के बच्चों की नाई ऊंचे उड़ना है तो मेहनत भी करनी है, उड़ना भी सीखना पड़ेगा। हाँ, आगे परंतु सब ने उस सुसमाचार पर कान न लगाया। यशायाह कहता है हे प्रभु किसने हमारे समाचार पर विश्वास किया है? अतः विश्वास सुनने से और सुनना मसीह के वचन से होता है। हाँ, विश्वास जो है सुनने से और सुनना मसीह के वचन से होता है। और परमेश्वर का वचन कहता है आसमान और जमीन टल जाएंगे वह मेरा वचन कभी भी नहीं टलेगा। और अगर तुम विश्वास करेगा और तुम विश्वास से कुछ भी मांगेगा वो तेरे लिए होगा। यानी मतलब मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, मगर हमें जिस पर हमने विश्वास ही नहीं किया हम कैसे मांगेंगे? How can we ask somebody जिस पर हमने विश्वास ही नहीं किया? यानी अगर हमें किसी पर विश्वास है कि ये मेरी मदद करेगा तभी विश्वास वो पूरा भी होगा, मगर अगर हमारा विश्वास ही नहीं है तो हमारी मदद भी नहीं होगी। परंतु मैं कहता हूँ क्या उन्होंने नहीं सुना? सुना तो अवश्य है, क्योंकि लिखा है उनके स्वर सारी पृथ्वी पर, उनके और उनके वचन जगत की छोर तक पहुँच गए हैं। मैं फिर कहता हूँ क्या इस्राएली नहीं जानते थे? पहले तो मूसा कहता है मैं उनके द्वारा जो जाति नहीं तुम्हारे मन में जलन उपजाऊंगा, मैं एक मूढ़ जाति के द्वारा तुम्हें रीस दिलाऊंगा। फिर यशायाह बड़े लाभ के साथ कहता है जो मुझे नहीं ढूंढते उन्होंने मुझे पा लिया, और जो मुझे पूछते भी न थे उन पर मैं प्रकट हो गया। परंतु मैं इस्राएल के विषय में वह ये कहता है मैं सारा दिन अपने हाथ एक आज्ञा न मानने वाली और विवाद करने वाली प्रजा की ओर प्रसारे रहा। हाँ, यानी परमेश्वर का वचन कह रहा है कि आज्ञा ना मानने वाले मत बनो। कई बार आपको आज्ञा जो दी जाती है हम मानते नहीं। कई बार पादरी साहब बुला रहे हैं तो लोग कहते हैं नहीं हमें नहीं सुननी, पादरी साहब कह रहे हैं इसलिए नहीं सुननी क्योंकि पादरी साहब कह रहे हैं।
परमेश्वर कह रहा है कि तेरे लिए चुने हुए दास मैंने चुने और तेरे पास एक ही ऑप्शन है कि तू उनकी बात को सुन। और जब तू उन बातों को सुनेगा तो वो मेरा वचन सुनाते हैं और जब वो तुम विश्वास करोगे तो वो तुम्हारे लिए बड़े बड़े काम कर देगा। खुदावंद मुझे और आपको बड़े बड़े काम करने वाला इंसान बनाना चाहता है। उसने कहा मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, मगर क्या हम खुदावंद से मांग पाएंगे जब तक हम विश्वास में नहीं बढ़ेंगे। और विश्वास तब हमारा बढ़ेगा जब हम विश्वास करेंगे कि ये मैसेंजर खुदावंद ने हमें दिया। नहीं तो जो भी वो मैसेज देगा वो हमारे लिए बेकार हो जाएगा, क्योंकि हमने अपने सोच गलत कर दी। खुदावंद मुझे और आपको ऐसी बुद्धि और ज्ञान दे ताकि हम अपनी सोच सही करें। क्योंकि वो लोग जिनके बारे में यीशु कह रहा है तुम्हारी हालत सदोम और गमोरा से भी बदतर होगी, वो कौन है? जिन्होंने विश्वास नहीं किया। अगर वो विश्वास करते तो वो चेंज हो जाते, मगर क्योंकि उन्होंने विश्वास करने की जगह उल्टा तौहमतें लगानी चाहते थे। जॉन द बैप्टिस्ट को कह दिया इसके अंदर शैतान है, और यीशु के लिए कहा पियक्कर और खाऊ और सिनर्स का फ्रेंड। तो खुदावंद कहता है मगर मेरा वचन जो है विजडम इज मेड क्लियर इन इट ओन सेल्फ। खुदावंद मुझे और आपको कहता है इफ यू आर वाइज you will listen to the word of God, change your ways and become his servant. Let us pray. प्यारे खुदावंद तेरा धन्यवाद देते हैं सच्चे वचन के लिए जो कि हमें बताता है कि हमारे को जो लोग दास भेजे गए हैं उनकी सुने। प्रभु परमेश्वर को वेडिंग फीस्ट के पैराबल में भी हम देखते हैं कि दास भेजे गए कि आओ मेरे खाने में से खाओ, राजा ने भेजा मगर उन्होंने उन दासों की बात की अवहेलना की और इसलिए वो उस बोझ से उन बरकतों से महरूम रह गए। और खुदावंद कि हम उन बरकतों से कभी महरूम रहने वाले ना बने। हम सब तेरे दास और दासी हैं, तेरे वचनों को सुने और उन वचनों पर भरोसा करें और फल लाएं और अपने अंदर चेंज लाएं। और खुदावंद तेरी बरकतें हमारे साथ बनी रहेगी। एंड व्हाइल वी आर येट स्पीकिंग यू विल हियर, आप हमारी सुन लेंगे और हमारे को जवाब देंगे। यीशु के नाम से मांगते हैं। 21 जून 2020 को हमारी पास्टरेट कमेटी की मीटिंग हुई थी और उसमें ये डिसाइड किया गया कि जो भी आपके सेल्फ डिनाइल बॉक्सेस हैं उनको आप खोल दें और जो भी आपकी सब्सक्रिप्शंस हैं या आपकी ऑफरिंग्स हैं उनको आप कैलकुलेट करें और उनको आप चर्च के अकाउंट में ट्रांसफर कर दें, या आप जो है क्रॉस चेक बना के चर्च पर मिस्टर सलीम को आप दे सकते हैं। एंड प्लीज डू इन्फॉर्म अस सो दैट वी मे अकॉर्डिंगली सेंड यू अ रिसीट। हम उसकी रिसीट आपको भेज सकें, इसलिए आप अपने जो भी ट्रांजैक्शंस कर रहे हैं उनकी डिटेल्स ऑफिस बेयरर्स को, मुझे या ट्रेजरर साहिबा को या तृप्ता जी को या पैट्रिक जो कि हमारे सेक्रेटरी हैं उनको आप दें। प्रभु आपके साथ हों। हम सब इस समय खड़े होकर अपने चंदे के गीत को गाएंगे। I'm pressing on the upward way, new heights I'm gaining every day, still praying as I onward bound, Lord plant my feet on higher ground, Lord lift me up and let me stand, by faith on heaven's stable land, higher plane than I have found, Lord plant my feet on higher ground. My heart has no desire to stay
where doubts arise and fears dismay. Though some may dwell where these abound, my prayer, my faith is higher ground. Lord, lift me up and let me stand by faith on heaven's stable land. Higher plane than I have found. Lord, plant my feet on higher ground. I want to live above the world, though Satan starts at me a hurl. For faith has caught the joyful sound, the song of saints on higher ground. Lord, lift me up and let me stand by faith on heaven's stable land. A higher plane than I have found. Lord, plant my feet on higher ground. I want to scale the utmost height and catch a gleam of glory bright. But still I'll pray till heaven I found. Lord, lead me on to higher ground. Lord, lift me up and let me stand by faith on heaven's stable land. A higher plane than I have found. Lord, plant my feet on higher ground. Let us pray for the offering. Heavenly Father, we approach thy footstool, O Lord, to give thanks unto thee for this beautiful day that thou hast blessed us with, for all thy wonderful blessings, Lord, that thou hast showered upon each one of us. And today, Lord, I come unto thy footstool to praise thy holy name, to bless thy holy name, and to give thanks and say thank you, Lord, for all that thou hast done for us, for thy blessings, for thy righteousness. Lord, thou hast kept us safe through this pandemic. Thou hast seen that thy people are united in strength. As Reverend Ashish Jacob continues to hold the fold together, reaching out through online prayers and prayer meeting, we pray, Lord, that thou will give us the strength, thou will give us the faith, thou will give us all that is needed, Lord, to go through this period of pandemic, keeping us safe in thy protective care. Lord, we pray for late Mr. Joseph. We pray for the family, Lord. We pray that thy healing hand and thy comforting hand be upon them. Lift them up in their hour of need, Lord. That with all that they need, they look up unto thee in faith and in righteousness. Uphold them, Lord. Keep them in thy protective care as they go through this period of mourning. Lord, we pray for the congregation members as they spend days in the safety of their homes, not being able to attend thy church, not being able to come and serve thee and pray unto thee in thy church. We pray that thou keep each one of them in thy bountiful care. Lord, and as we remember that all things that come from thee, Lord, it is only right that we give back unto thee what thou hast given unto us.
And therefore, Lord, we bring these offerings with a joyful heart, with a song of praise, that all that thou hast done for us, we give back unto thee. That thou may bless these offerings, that it may be used for the extension of thy heavenly kingdom. And as we work towards that end, Lord, we beseech thee to strengthen our faith. We beseech thee to be with us. We beseech thee to guide us, for thy word is a light unto our steps. It sets our path, and thy light takes us to righteousness. Lord, we beseech thee, be with us as we go through these days, and eagerly look forward to the doors of May, that we may enter thy church, that we may praise thy holy name, that we may pray unto thee. Through thy beloved Son, our Saviour, Jesus Christ, we pray. Our Father, who art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done, on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our sins, as we forgive those who sin against us. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. For thine is the kingdom, the power, and the glory, forever and ever. Amen. And now the grace of our Lord Jesus Christ, and the love of God, and the fellowship of the Holy Spirit be with us and all our loved ones this day and forevermore. Amen. And the blessing of God Almighty, the Father, the Son, and the Holy Spirit be amongst us and remain with us always. Amen. Unto God's gracious protection do I commit you. May the Lord cause His face to shine upon you, be gracious to you, and give you His grace to follow Him. Amen. आप सबको जय मसीह की